Welcome everybody to this chat show face to face. This is the third season, the third year of this program, and today is the third episode of the third season. This is a program, as is evident from the name itself, wherein there is an interaction, some informal interaction is happening between the dean and the students. And there's a program that we devised during 2020, during the time of pandemic. And since then, we have been continuing with this program. This program is produced by DME Media School. DME Media School is part of Delhi Metropolitan Education, DME. And if I can tell you something about DME, DME is one of the most prestigious institutions affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University. We have three departments here, three schools here. Besides the media school, there are the management school and the law school, and we offer 4 academic programs. The 5-year integrated law, wherein there are 2 separate programs, BA LLB and BBA LLB, and then BBA and BA JMC. DME is known for all such things, for all such activities which are normally not thought of by other institutions. We always keep the students in the focus, and we always try to do whatever is possible for their growth and for their betterment. And if I can refer to what happened during this COVID-19 period, during this time, since classes were mostly in the online mode because we were facing lockdowns one after another. So we try to not only continue with the online education, but then we also try to produce the lectures and the study material for the students. We also try to find ways and means as to how even the practical classes could be compensated either on the online mode, or if we could call the students, invite the student to the campus, where in small groups we were trying to get everything imparted the way it was possible. And the important thing in all this endeavor was that we were trying to keep that engagement with the students alive. And we were trying to be as compassionate as possible, and we were looking after the students to the best way possible. So let us look into as to what all was handled, what all was done by DME as far as imparting education and training is concerned during this period. In DME, we believe in engagement and empowerment of students. And since the time this COVID-19 struck in 2020, we intensified this whole process. For the education sector, it was a big challenge. At DME, our small dynamic team decided to take this challenge head-on. We organize different kind of programs, different webinars, wherein the distinguished people from the industry and other walks of life, they are invited to interact with the students. We try to keep them engaged in taking out newsletter, writing stories, editing stories, and not only that, they make posters, they make cartoons, they write pieces for the newsletter. Mentoring cell at DME is a very unique feature in the ecosystem of education. While the subject teachers forge the knowledge domain strongly, it is the mentors who reach out to students in difficult times. During pandemic, when our students faced loss of their loved ones, home isolation, and several other family issues, mentors ensured that students remain cheerful, lively, and stay connected with us. We have ensured that our students are treated with compassion, warmth, and gentle touch. And it has been our endeavor to treat all the academic activities of our students, which includes PSDA, internal assignment, and various other curricular activities accordingly. Research Cell also pays huge emphasis on interdisciplinary nature of research in order
to promote this, the research centers of the research cell were also motivated to join with each other and conduct research activities for students, faculties within DME and outside DME. While the strong academics and great industry connect is building great lawyers, media persons and managers at DME, we at Mentoring Cell are enabling these future leaders to be compassionate, emotionally strong and resilient for any times to come. We empower the students. All the schools of DME, they have their students council. In DME Media School, this council is part. They organize the program themselves, they take their own decisions and they mobilize the students for all the good cause. Art has the power to unite and connect during the times of crisis, bringing people together, sharing, soothing and inspiring are powers of art, which have been made empathically obvious by the DME cultural societies during the COVID-19 pandemic. By taking different innovative approaches in organizing various virtual competitions and events in which the students of DME have taken part with great enthusiasm and proved that DMEians are unstoppable. Care with compassion is motto of DME. During Corona period, we were always with our students. Their well-being is primary for us. We take care of our students. We met the expectations of the students, of the parents and above all of the industry. The placements this year were better than those of the previous years. DME is committed to supporting its students in all possible ways. Welcome back to Face to Face. So to tell you something more, since as I told you, this is an initiative, this Face to Face is an initiative of DME Media School, and DME Media School conducts all such activities which could be an envy to anybody, particularly if I make a mention about the flagship events, the International Conference ICANN, which we conducted for 10 days. This started in 2020 after this lockdown had been imposed. And we continued with that in 2021 as well. And this came out to be the only conference in the entire world which was happening in digital live mode for 10 days together. And then we also organized the International Film Festival SIFI, and during this period it was a 7-day event. It was in the hybrid mode, and if I can tell you about 2021, we made a mark by getting an entry of more than 3,100 films from 111 countries. Besides that, we have such activities like BG Workies lecture series, in which we invite very distinguished people from the media to talk about different aspects of media. And during this Corona period, we invited the distinguished guests from different parts of the world, including the US, UK, Iran, and other countries. So this one more program, I must make a mention of this Vibrant India series, which was started last year to commemorate the 75 years of India's independence. And in this program also, we have finished 35 episodes of this program. And this particular program, this chat show Face to Face. This is a program which we started in 2020, and this was completely a program which is in the informal setup, wherein we are talking about the current scenario, about the passions, about the interests, about the engagement, about the career planning, and all other aspects of life with the students. So before moving further, let us have a look as to who all students are there participating in this third episode of this program.
show face to face. So now everybody has known as to who all are there participating in today's session, and if I need to introduce them, these are the students from all the 3 years. So if from 2019 batch, if I start from the senior most batch, so from 2019 batch, we have Laksh Bisht with us, who has earlier been also part of this program. And from 2020 batch, we have Priya Mishra with us. She has also been part of this program earlier. And then we have Ishika Shaw, who is from the 2021 batch. So I welcome everybody to this chat show face to face. Now, to begin with, as it's customary, we start talking to the senior most person first. So, talking to you first, Laksh. If I again refer to this whole Corona period, though in a way we have come out from this period, though for the last few days there are reports that this fourth wave, this danger is again looming large. But let us hope it will not happen. But still, during the 3 waves of this COVID-19, a lot of sufferings have already taken place. And if I completely concentrate on the teaching part or the studies part, since college remained closed for most of the period and classes could not happen the way it should have happened. So there are all not so good memories linked to this Corona period, but still there are certain good things happened, which earlier also we have been talking about that. But then if I ask you any such memories which you cherish, which you still feel that some good things have happened during this COVID-19 period, what will you tell us? So first of all, good morning to everyone, and special thanks to Ambrish sir and my mentor Mudita ma'am for allowing me again to express myself on this platform. So sir, the major memories I share is that like initially it was a bit hard, but as the time progresses and as like I indulge in more and more different type of activities, and also like embrace my like inner self, and also like used to continue to do my daily activity on a consistent basis, and as well as like coming off my pet dog, and like my brother bought her, and it was like occasion, it turned into a wonderful experience in the whole Corona time, like caring for someone other than yourself and stuff like that. So it was like lively experience basically. So if you look at whole period from your education perspective, because Yes, when you joined in 2019, Yes, it was all open, and when you were in the second semester, it closed down, and at the fag end in the last semester, it has again opened up. So it's a topsy-turvy thing. Now, if you look at whatever you learned during all these 3 years, whether offline or online, how will you make a comparison? What will you say about that? So like my college life is full of like a roller coaster ride. It is like full of ups and downs, and it's also like full of surprises as well. So the major things I learned was that first of all, it was being more organized. Like I always manage my time well, but not in the sense of like doing things like in a patterned way, but not in the sense of like channelizing my energy, basically energy levels. So I learned how to be organized with more with my energy level, basically like what time of the day I'm like fully energized, and I should do the lengthier and the most difficult task at that time of the day, so it will give a like better outcome. And as slowly as the day like winds down, so I will move on to lighter and light-hearted tasks, and like I try to keep it like as consistent as possible. So it was like initially that I was being more organized, and then I learned about like perseverance, because as you know, if you want to set a long-term goal, because we are in a stage of like lives where we have to choose a career for long term, so you have to got to have a long-term plan.
So we have to get more organized, and we have to also develop some kind of perseverance for it. Like results will not come immediately, but you have to follow through all the plan and like do it on a consistent basis, whether it be day or night or rain or snow or summers or winters. You have to like not stop. Like you have to be motivated. You have to motivate yourself basically. So, and I also learned much more things like how to kind of gain right or correct like guidance at the right time basically. So I gained like the most from like वैसे तो I gained from all the teachers, but I mostly gained most of my knowledge and like most of the good qualities from Mohit sir and Sachin sir, like specifically because not through like they don't obviously spoke anything directly, but through their like they held on to firmly to the beliefs first of all, and through the actions basically they were so enthusiastic about like teaching and stuff, and they were like so knowledge driven, and like it was kind of inspiring. And also from Mohit sir specifically I learned that if you are at the advanced level of learning, so there is a very thin line between the truth and the fake thing. So you have to develop a trained eye to separate the two. And from Sachin sir I learned that you have to gotta keep like believe, you have to gotta keep faith in yourself no matter what. You have to like develop an ability of continued improvement. Like you will never be perfect, and but you have to strive for like improvement, basically daily improvement, because that's how life goes, and that's how like you develop this change. Thank you, Lakshya. Now moving on to Priya. Priya, whatever has happened, you all you have experienced that all your batch entered at a time when it all was closed down, and then in between you were getting chance to come to the college and doing this thing or that thing, but then formally it was opened quite late, when almost half of your time of the bachelor's degree has already gone. How do you look at all this experience that you had since the time you joined DME? गुड आफ्टरनून सर। जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है तो ऑफलाइन जो था, अभी हम मतलब कि ऑफलाइन आ गए, लेकिन जब ऑनलाइन में था तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई कि दोनों चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी ऑफलाइन कर रहे हैं, पहले ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन की कुछ खास बातें थी, और उसका अगर पॉजिटिव ही देखें, नेगेटिव तो मतलब था ही कि आप ऑफलाइन में मिल सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम मिलता है बात करने के लिए। ऑनलाइन में कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन बैरियर होता ही है, लेकिन ऑनलाइन ने जो एक चीज़ सिखाई है वो ये है कि आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर होना कितना ज़रूरी है, तो खास तौर से जब आप मीडिया की फील्ड में हैं। तो ऑफलाइन आके एक्चुअली मैं ऑनलाइन में समझ आ रही थी, लेकिन ऑफलाइन में ये समझ आ गया कि कहाँ-कहाँ गलती हो रही थी, जिनको सुधारना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे मेन चीज़ मैंने ज़रूरी चीज़ सीखी है वो है कि कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी होता है, और एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो ऑनलाइन ऑफलाइन से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बात करना आना चाहिए, आपको दूसरे को समझना आना चाहिए। तो मुझे ऑफलाइन में आके काफ़ी अच्छे से समझ आ गया। दूसरा चीज़ ऑनलाइन में ये था कि टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल रहा था। ऑफलाइन की बात करें तो अभी थकावट भी होती है, जाना भी होता है। ऑनलाइन में एक चीज़ थी कि आप पढ़ तो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, पढ़ाई वहाँ पे भी समझ आ रही थी। बट कुछ जैसे कि हम एक ऐसी डिग्री ले रहे हैं जहाँ पे हमें जब तक हम करके नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक समझ नहीं आएगा। और मुझे लगता है अगर अभी भी हमारे पास टाइम है, अगर हम अभी भी चाहें तो प्रैक्टिकल्स वो कर सकते हैं। ऑनलाइन में एक एक्स्ट्रा टाइम ये मिला कि आपको पढ़ने का टाइम मिल गया, आपको वो टाइम मिल गया कि आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, अपनी करिकुलर के अलावा, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अलावा पढ़ सकते हैं। तो मुझे ये 2 चीज़ काफ़ी अच्छी लगी ऑनलाइन। तो जब ऑनलाइन चल रहा था उस बीच में तुमने डिस्पाइट ऑल दोस कंस्ट्रेंट्स, क्या ऐसी नई चीजें एजुकेशन के लिहाज से, क्या ऐसी कुछ नई चीजें थी जो तुमने सीखी? सर पहले तो एक चीज़ थी कि मैंने एक आदत अच्छी वो लगाई कि मेरे को बुक पढ़ने की आदत नहीं थी, मुझे बुक्स पढ़ना नहीं पसंद था। मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर मैं पढ़ूंगी कभी बुक्स तो मैं कैसी बुक्स पढ़ूंगी, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, और मतलब सब्जेक्ट से अलावा, करिकुलर से अलावा। और दूसरी चीज़ मुझे लिखना आ गया। मतलब मुझे पहले मैं इतना ज़्यादा था नहीं लिखने में मेरे को, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद ही मुझे समझ आया कि अच्छा मैं लिख भी सकती हूँ, और मैं लिखूंगी तो अच्छा भी लिख सकती हूँ। तो एक वो प्रैक्टिस एक अच्छी हुई कि अब लिखने की एक आदत हो गई है कि हाँ, समझ आता है कि अगर चाहें तो लिख सकते हैं। तो एक तो लिखना अच्छा हो गया है। हाँ, ये 2 चीज़ हैं। अच्छा, तो चलो जब से अब क्लासेस शुरू हो गई फेस टू फेस मोड में, फिजिकल मोड में,
तो उसमें जैसा तुमने खुद ही कहा कि काफी स्पेस मिला, काफी मौका मिला, तो जब से भी कॉलेज तुम आ रही हो रेगुलर कोर्स में, वैसे तो तुम बीच बीच में पहले भी आ रही थी, लेकिन जब से रेगुलर कोर्स में कॉलेज आ रही हो, रोज आ रही हो, और बहुत सारी एक्टिविटीज या बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें, प्रैक्टिकल पेपर सब कुछ हो रहा है, तो इस बीच में तुमने क्या नया ऐसा किया या क्या और ऐसा नया करना चाहती हो जो तुम नहीं कर पाई अभी तक? सर, जो मैं करना चाहती हूँ वो है कि हम स्पार्क से भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे मेरा काम अभी वही है, सोशल वर्क को लेके अभी मैं काम कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि वो मेरे दिमाग में हमेशा से था, लेकिन मुझे लगता है अब मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, तो अब मैं करूँगी वो काम। और दूसरी चीज़ ये है कि अब यहाँ पे आके जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो कि मैंने कहा था कि जो कि ऑनलाइन में नहीं हो पाई, वो कर रही हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ जब जब से ऑफलाइन में आए तब से बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया मैंने। तो वो ऐसा है कि सिर्फ कॉलेज का कॉम्पिटिशन नहीं, पहले सिर्फ कॉलेज में कॉम्पिटिशन था। अब जो बाहर के कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पे मैंने भी लगातार 2-3 कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और मैं वहाँ पे जीती भी हूँ। तो एक वो चीज़ हो गई वहाँ से ना, और अब जितना काम करते हो, सबसे मेन चीज़ जो सीखी है, आप जितना काम करते हो, जितना पार्टिसिपेट करते हो, जितना आपको समझ में आता है कि आप कितना पानी में हो, तो कितना तुमने नहीं। तुमने किन किन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और उसमें क्या क्या पाया तुमने? सर, अभी सिम्बायोसिस में हुआ था पॉडकास्ट का, तो वहाँ पे मुझे मतलब मैं विनर थी, और वहाँ पे कुछ प्राइज मनी है 3000, तो वो मिलेगी अभी। और दूसरा, अभी एक कॉलेज में हुआ था हमारा रेडियो सोसाइटी का, तो वहाँ पे मैं फर्स्ट आई थी। और दूसरा, अभी मैं नोजोटो पे काम करती हूँ, यानी कि जो एक स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे अभी एक ओपन माइक हुआ था, तो वहां पे भी मैं भी सेकंड आई थी, तो उसमें भी मेरे को प्राइज मिला है। तो अभी लगातार अभी काफी वो मिल गया कि लोगों से, अब पहले ऑनलाइन में ओपन माइक पहले भी कर रही थी, लेकिन अब ऑफलाइन में ओपन माइक करने का एक अलग एक्सपीरियंस है और लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिला। तो अब तुम्हें ये 3000 रुपए जो मिलेगा, इसका क्या करोगी तुम? सर, मेरे को ना बुक खरीदनी है जो बहुत, मतलब मेरे को अभी रेडियो में भी जो 1500 मिले हैं, तो मुझे भी बुक ही खरीदनी है। तो बहुत सारी बुक्स का ऐसा बना रखा है, तो अभी वो सारी बुक जो लिस्ट में उन सबको खरीदनी है। तो अभी हाल में तुमने कौन कौन सी नई किताबें खरीदी? सर, अभी मैंने 22 बरी पढ़ी थी। उसके बाद मैंने अभी अ साइलेंट हूँ बाय जोसी जोसेफ, वो मैं पढ़ रही हूँ अभी। इसके बाद होल नंबर्स वाली एक बुक है, मैं राइटर का नाम भूल गई, वो बुक लेनी है। और इसके अलावा मेरे को कुछ बुक्स हैं, एक है वो नाथूराम गोडसे जी ने जो लिखी थी, वाई असैसिनेटेड गांधी, मुझे वो बुक भी पढ़नी है। और इसके बाद कुछ ऐसी क्योंकि मैं लिखती भी हूँ, तो मुझे बड़े-बड़े शायरों को भी पढ़ना है। मेरा ज़ोन शायरी का है नहीं, मेरा पोएम का है और सोशल इश्यूज़ पे मैं लिखती हूँ। तो मुझे फिलहाल उन बुक्स को भी पढ़ना है, तो वो भी एक शायरी की अलग बुक है कि ये भी लेनी है और ये भी लेनी है। चलो, अच्छा है। तो आई विश कि तुम और ज्यादा प्राइज जीतो और ज्यादा पैसा मिले तो और ज्यादा किताबें खरीदो और पढ़ो। Now moving on to Ishika. Ishika, you have joined very recently as compared to two of your seniors. And luckily, since the time you joined, it is more or less open. For a short while, the classes were not happening in the physical mode, but mostly before that and after that, it has been in the physical mode. And now, more than, I believe, how many, 6 months have passed since the time you have joined the college. Now, since this corona happened, you were there in the school, so you had that experience of continuing your studies in the online mode, and now here it is in the offline mode or in the physical mode. How do you look at this shift, and what will you say about your experience regarding this? Good afternoon, sir. Thank you, sir. Sir, 11th standard की एग्जाम देने के बाद जब कॉलेज बंद हो गया, स्कूल में जब बंद हो गया कोविड की वजह से, देन सर था कि एक तो 11th स्टैंडर्ड में ऐसा होता है कि 11th स्टैंडर्ड एंजॉय कर लेते, 12th में तो बोर्ड्स है। फिर 12th स्टैंडर्ड में जब पढ़ना स्टार्ट किया तो था कि बोर्ड्स होगा नहीं होगा, तो इसमें ना हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहता था कि पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। लेकिन सर फिर भी स्कूल के बाद भी, स्कूल के बाद तुरंत जब सब कुछ बंद हो गया तो बहुत ज्यादा हार्ड टाइम था, जब ट्यूशंस भी बंद हो गए। तो सर सेल्फ स्टडी करती थी, सर बहुत ज्यादा मन नहीं लगता था, डिस्ट्रैक्शंस भी होते थे, घर पे रह के इरिटेशन भी होता था। बट फिर यूट्यूब्स पे अच्छे पढ़ाई के वीडियो ट्यूटोरियल्स देखे, और फिर आफ्टर दैट 12th का बोर्ड्स हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद अभी जब हम ऑफलाइन आए हैं
और इनफैक्ट कॉलेज में भी व्हेन वी वर ऑनलाइन तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जब वहां थे तो लाइक सुबह उठे और बेड पे बैठ के क्लास ले लिया, फिर क्लास के बीच में क्लास बेड पे बैठ के लेती थी? सर कैमरा ऑन करके बेड पे बैठ जाती थी क्यों? कभी कभी। अच्छा, अब कभी कभी, अब तुमने सोचा पकड़ गई तो अब कभी कभी लगाते हैं उसमें। सर मतलब कंफर्ट में, आराम से कंफर्ट में बैठ के पढ़ती थी। पढ़ाई तो कभी कंफर्ट में होती नहीं। सर क्लासेस ना उस वक्त मतलब जस्ट कैमरा ऑन रहता था और अगर सर ट्रुथ है ये, सारे बच्चों का फोन खुल रहा। सारे बच्चे क्या करते थे? लिहाफ ओढ़ के, रजाई ओढ़ के क्लास करते थे। यस सर, सब करते थे। फिर ब्रेकफास्ट पे कैमरा ऑफ करके हो जाता था। और सर अभी जब ऑफलाइन आए हैं तो सब कुछ करना होता है लाइक टाइम टू टाइम। उस टाइम ना अपने को करिकुलर एक्टिविटीज को भी मैं बहुत ज्यादा टाइम दे पाती थी, और अभी सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मतलब तुम क्लास में कैमरा बंद करके पढ़ाई करती, मतलब क्लास में अपना कैमरा ऑन रखती थी कि ऑफ रखती थी? सर कैमरा हमेशा ऑन रहता था मेरा। तो बाकी लोगों का तो ऑन नहीं रहता था, तुमने बताया अभी। सर करते थे वो, पता है। तो सबको बचाने की कोशिश कर रही हो। तो तुम जब क्लासेस, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर नहीं मतलब ऐसा था कि कुछ बच्चे कैमरा ऑन नहीं करते थे, लेकिन सर जो नहीं करते थे उनका भी पता है। मतलब सर कंफर्ट जोन में पढ़ाई होती थी ऑनलाइन, इतना तो है। सर एज अ स्टूडेंट आई होती थी सर, जैसे अगर कुछ खाना भी है तो 2 मिनट के लिए साइड हट के खा लिया, या कुछ पढ़ना है तो ऐसा हो जाता था। लेकिन तो सर अभी ऑफलाइन, अब क्या, अब कंफर्ट जोन खत्म हो गया? सर कंफर्ट जोन खत्म नहीं हुआ है, शायद हो भी गया है बहुत ज्यादा, लेकिन सर बहुत ज्यादा हमारे लिए टफ था, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन टू ऑफलाइन शिफ्ट होना बहुत ज्यादा टफ था। पहले लाइक कि बस ऑनलाइन रहते थे तो बस पढ़ाई करते थे, और साथ ही साथ कुछ को-करिकुलर एक्टिविटीज भी देते थे। कहीं जाना होता था वो भी जा सकते थे, अगर आप बाहर हो और अगर कोई इंपॉर्टेंट सेशन है तो वो भी आप अटेंड कर सकते थे। लेकिन सर जब से ऑफलाइन आई हो तो लाइक फ्रॉम 9 to 4 आई हैव टू बी इन कॉलेज, और इसके बाद सर थक जाना, उसके बाद फिर घर जाके अपने को-करिकुलर एक्टिविटीज को टाइम भी नहीं दे पाती थी, लाइक नहीं दे पाती हूँ, ऐसा होता है। मतलब तुम क्या एंजॉय करती हो फिर, ऑनलाइन की ऑफलाइन? ऑनलाइन सर एट अ टाइम करती थी, बट दोनों में प्रोस एंड कॉन्स तो है। इनफैक्ट अभी नहीं, तुम्हें दोनों में कौन ज्यादा पसंद है, ये बताओ। सर ऑफलाइन। अच्छा, क्यों? सर क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता था कि फोन पे देख के, स्क्रीन पे देख के थक जाती थी, और सर ऑनलाइन में मतलब अगर 9 से 9:40 क्लास है तो 9:41 में दूसरे सब्जेक्ट का लिंक आ जाता था ना। यहाँ पे मतलब 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ब्रेक मिल जाता है, फिर कभी वॉशरूम चले जाते हैं, दोस्त रहते हैं तो नॉर्मल बातें हो जाती है, टीचर के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छे से होता है, प्रैक्टिकली लैब की चीजें बहुत अच्छे से सीखते हैं, घर पे उतने अच्छे से नहीं हो पाता था, सॉफ्टवेयर वगैरह। तो तुम जब ऑनलाइन क्लासेस करती थी तो घर पे रहती थी या दिल्ली में नहीं थी? नहीं सर मैं झारखंड से हूँ ना, जमशेदपुर से, तो सर मैं तो घर मतलब लाइक वहां से करती थी। तो यहाँ पे सर, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी बहुत तक जब ऑनलाइन चल रहा था तो भी मैं बीच बीच में कॉलेजेस आती थी इवेंट्स के लिए। तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या चाहते थे, तुम घर में ही रहो और क्लास करती रहो तो कम से कम तुम उनके सामने रहोगे, या ये चाहते थे कि जाए यहाँ से पढ़े, कम से कम हमें डिस्टर्ब ना करे? सर पेरेंट्स चाहते थे कि तुम जाओ वहां पे, मतलब वहां पे जाके लाइक सर उनका था कि मतलब उनको ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती थी ऑनलाइन से, कैमरा ऑन करके बैठे रहो, वो भी सोचती थी कि तू क्या करती रहती है घर पे दिन भर। तो उनका भी था कि नहीं तुम जाओ दिल्ली और वहां पे जाके पढ़ो, लाइक प्रॉपर कॉलेज लाइफ। और सर हम लकी भी है, लाइक बाकी 2 बैचेस से ज्यादा हम लकी है इस मैटर में। ठीक है, so moving on, I think Laksh, are you there? Yes, sir. Sorry, sir. Wi-Fi connection was not. Yeah, so moving on to Laksh again. Now, whatever happened during Corona period, now it's a matter of history and we have to move on. Now, if I ask you, Laksh, about your hobbies, your passion, your inclination, and what you're too eager to do, what will you tell us? Oh, I have like a variety of hobbies and inclinations, but the major ones are like creative writing and
like somewhat like cooking. So I'm on to like learning new recipes, or like mainly I'm like on to क्या क्या reading नई more. नई नई रेसिपी क्या तुमने सीख ली? Oh, sir, I am like kind of learning how to cook like butter chicken and how to like cook it like without यहाँ adding the spice stuff, basically spice stuff. यहाँ तो सब वेजिटेरियन है। देखो प्रिया भी नॉनवेज नहीं खाती और इशिका भी नॉनवेज नहीं खाती, तो फिर तुम्हारे बटे Yes, sir. No, sir, I can cook आती हो तो चलो तुम अब बनाओगे half तो soya इशिका chop को, or paneer for them. अब तो लक्ष्य तुम अब बनाओगे तो फिर इशिका को लाके खिला सकते हो, खाती है। प्रिया तो खाएगी नहीं। No, sir, I also know how to make like soya chop and like paneer. सर मैं फिश तो खाती हूँ, तो हमारे यहाँ फिश खाते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं खाते, तो भैया फिश बनाएंगे तो हम खाएंगे। अब मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो इसीलिए कहा, दोनों लोगों ने बता दिया कि खाते हैं। चलो और क्या सीखा? And sir, I'm like lately into like reading philosophical novels and creative novels basically, which brings out like a bit different artistic side. Like I'm right now reading a novel by Colleen Hoover, which is titled November 9. So there's a writer character in this novel, and there's his girlfriend, and they met like 2 hours before she like ran off from a home, and they agreed to meet like on the same date at the same place at the same time for like the next 5 years. Like they have to only meet on November 9, and the outcome of this whole catch is that he has to write a novel, but he has to like hide all her flaws because her entire body is burned. And the main thing is like it also happened 3 or 4 years before on November 9th as well. And during those tenure of November 9th, I guess his older brother died same day on November 9th as well, during the tenure of 5 years on 3rd or 4th year. And like it's on the basis of how much a date can signify your entire life. So that's about that. Okay, so moving on to you, Priya. I know that you are interested in so many things. I'm not sure whether you are sure about it, which is your area of more interest. But whatever you do, can you tell us about that? And also, what are those areas which are more close to your heart as far as your talent is concerned? सर मुझे लिखना पसंद है, और लिखने में भी उसको जो प्रेजेंट करने की बात आती है, तो मुझे स्लैम पोइट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी पसंद है, जहाँ पे आप परफॉर्म करते हो, उस पोएम को परफॉर्म करते हो और लोगों तक वो चीज एकदम डायरेक्ट पहुंचती है। तो वो चीज मुझे काफी पसंद है। फिलहाल मैं लिख कम पा रही हूँ क्योंकि मैं भी फिलहाल पढ़ ज्यादा रही हूँ, तो अभी लिखने का थोड़ा सा कम हो गया, बट मुझे वो काम बहुत पसंद है। दूसरी चीज, मैं अभी नुक्कड़ नाटक जो होता है अभी हम लोग अलग से करते हैं, तो वहाँ पे अभी कुछ कॉलेज के भी स्टूडेंट्स हैं, स्पार्क के भी थे, तो अभी हम लोग फ्राइडे फॉर फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्लाइमेट स्ट्राइक होती रहती है, तो वहाँ पे हम नुक्कड़ नाटक करते हैं। तो मेरे को वो चीज काफी अच्छी लगी, मैंने 3 बार किया है, और वो काफी, वहाँ पे मेरा मेन काम ये होता है कि मैं ज्यादा स्क्रिप्ट करती हूँ। ऑफकोर्स वो तो नुक्कड़ नाटक में मैं रहती हूँ, लेकिन स्क्रिप्टिंग में ज्यादा रहता है, जहाँ पे हमें वो सॉन्ग्स बनाने होते हैं अपने, और जहाँ पे हमें वो डायलॉग्स लिखने होते हैं, वो मोनोलॉग भी एक बनता है छोटा सा, तो वो सब लिखने में बहुत मजा आता है, परफॉर्म करने में भी बहुत मजा आता है। और नुक्कड़ नाटक जब मैंने 3 बार किए हैं, तो वहाँ पे सबसे अच्छी चीज है कि आपकी जो बात है वो लोगों तक डायरेक्ट जाती है, और वहाँ उनका फीडबैक भी मिलता है। तो कई बार, एक बार तो ऐसा हुआ था कि लास्ट में जो क्लोजिंग स्टेटमेंट दे रहा था हमारे नुक्कड़ नाटक में से, उसके साथ जब हमने बंद किया तो कुछ लोग ऐसे आ गए और वो हमसे बहस करने लगे। बहस इन द सेंस कि उनका पॉइंट कुछ और था, हमारा कुछ और था। तो वो समझाने का जो लोगों को, मतलब एक वो ये भी हुआ कि हमारा कम्युनिकेशन भी हम देख रहे थे कि हम कितने अच्छे से उसे समझा सकते हैं, बता सकते हैं, या जो वो बोल रहा है वो कितना सही है। तो इन शॉर्ट मुझे लोगों से बात करना, उनके पॉइंट्स को समझना, सुनना, वो बहुत पसंद है। उसके बाद एक और चीज है जो मैं अभी, मुझे लगता है, सीख ही रही हूँ कि खुद का अगर पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है तो हर तरफ की बात सुननी और समझनी पड़ेगी। तो उस चीज पे मैं ध्यान दे रही हूँ। मेरे को ये काम थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि सबकी बात इतनी सारी होती है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अब उसमें अपनी बात एक अलग से निकाल के लाना, तो एक वो चीज मैं कर रही हूँ। बाकी ये 2 चीजें मुझे काफी पसंद। तो तुम जैसे कह रही हो कि दूसरों की बात सुनना समझना अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हमेशा तुम्हें संभव दिखाई देता है? अगर कहीं इस तरह के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं जो बेसलेस हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, और जो सिर्फ आर्ग्यूमेंट से के लिए, और देयर माइट बी सर्टेन थिंग्स व्हिच यू फील दैट यू आर नॉट कन्विंस्ड एट ऑल, और
इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, हाउ कैन यू टैकल सच काइंड ऑफ थिंग्स? सर सबसे पहली चीज, बहस से कुछ नहीं होता, वो तो मैं समझ गई हूँ। मैं अपना पॉइंट कितना भी चीख चीख के रख दूं सामने, कुछ भी नहीं होता है। मेन चीज ये है कि सामने वाला अगर कोई ऐसा पॉइंट, पहले तो मैं जब भी मुझे कोई चीज किसी की भी गलत लगती है, फिर मुझे लगता है कि मुझे डाउट है, तो मैं हमेशा पूछती हूँ। मेरे को वो चीज काफी अच्छी थी, क्योंकि मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना भी काफी पसंद है, जो भी बना है। तो सबसे मेन चीज है जो मैं कह रही हूँ, मैं सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू बदलने से ज्यादा इस पे ध्यान रखती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ मैं उसको कैसे सही कह रही हूँ, मैं क्यों सही हूँ। सामने वाले को ये बताना जरूरी है कि जो मैं कह रही हूँ किस बेसिस पे कह रही हूँ, किस फैक्ट्स की बेसिस पे कह रही हूँ, किसी भी बेसिस पे कह रही हूँ, तो मैं किस बेसिस पे कर रही हूँ। सामने वाले को पूरी तरीके से बदलने का मैं जिम्मा नहीं उठाती हूँ। मेरा मेन काम सिर्फ इतना होता है कि मैं सामने वाले को ये बता दूं कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आपको कहाँ कहाँ गलत लग रहा है। अगर मैं उसकी बात का काउंटर कर सकूं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा बोला जिसके बारे में मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ कहीं ना कहीं, कि मैंने ढंग से नहीं पढ़ा। और सर मैंने इसीलिए कहा पहले भी कि जब हम लोगों से बात करते हैं, अलग अलग लोगों से बात करते हैं, हमें समझ में आता है कि हमें और कितना पढ़ना है और अभी कितना और करना है। तो वो तभी होगा जब हम इंटरेक्ट करेंगे। तो प्रिया, क्या तुम समाज को बदलना चाहती हो, और अगर बदलना चाहती हो तो क्या बदलना चाहती हो? सर जो सबसे बड़ी चीज है, जो दिक्कत है, पहले तो मैं एजुकेशन पे, क्योंकि अभी ऑलरेडी काम कर रही हूँ, तो सबसे पहला ध्यान तो मेरा एजुकेशन की तरफ ही है। बदलना ऐसे नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा, लेकिन हाँ, एजुकेशन अगर एक शांति से एक काम किया जाए ना, कि लोगों को एजुकेट किया जाए, तो जरूरी है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है, पढ़े लिखे लोग भी कुछ ऐसे काम करते हैं जो एक्सपेक्ट नहीं होता है कि आप पढ़े लिखे लोगों से ऐसा कर सकते हो। पढ़ने लिखने का भी एक मतलब होता है कि आप में वो सेंसिटिविटी होनी चाहिए एक दूसरे को लेकर। और अभी जैसे कि हम अभी देख रहे हैं जो कम्युनलिज्म हो रहा है, या फिर अलग अलग चीजें जो हो रही है समाज में, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो सर वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। और अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने बोला था कि हर स्टेट को जानो तब आप समझ पाओगे कुछ भी आगे करने के लिए, तो वो बहुत जरूरी है। तो सर मैं वही कह रही हूँ कि अभी मैं सिर्फ उस रास्ते पर ही हूँ, तो अभी मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी। तो तुमने अभी प्रिया कुछ रिसेंटली कुछ ऐसा लिखा जो तुम हमें सुना सकती हो? सर फिलहाल तो मतलब भी मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे ही लिखा था लास्ट टाइम, जो भी वुमेन्स डे हुआ था, तो उससे रिलेटेड ही लिखा था। कुछ ऐसा है, द लाइंस व्हिच यू कैन रीड फॉर अस? हाँ सर, मुझे आप 1 मिनट देंगे तो मैं वो लेके हाँ आती ठीक है, तब तक ईशा से बात करता हूँ। So Isha, Ishika, the question that we were discussing, particularly about your hobbies, about your interests, your inclinations, your passion, and as I have found during your very short stay in DME, like Priya, you are also into so many things. But for us, for the sake of the audience in this program, what will you tell us about your interest? Thank you, sir. I have a lot of hobbies as such, dancing, singing, acting, anchoring, writing poetries as well. और ये लाइक हॉबीज, अब मैं इनमें से कुछ चीजों को अपनी पैशन भी बनाना चाहती हूँ। जैसे कि मैं अभी तक डांस को लेके अभी भी लाइक रोज करती हूँ, और इसमें मैं अभी डिप्लोमा भी परस्यू कर रही हूँ। अच्छा, और कौन सा डांस करती हो? सर कथक। अच्छा, सीखा तुमने? यस सर, सीखती हूँ। अच्छा, कितने साल हो गए सीखते हुए? सर ऐसे तो बहुत पहले से सीख रही हूँ, लाइक बीच में गैप हो गया था, बीच में फैमिली इश्यूज भी हो गई थी, और फिर बीच में लाइक फिर मैं वेस्टर्न में शिफ्ट कर गई थी। लेकिन ऐसे सब 2010 से डांस कर रही हूँ, मतलब एज लाइक सीख रही हूँ तब से। तो अभी कॉलेज में जब से तुम आई हो तो तुमने कुछ परफॉर्मेंसेस किए? यस सर, मैंने स्पार्क की तरफ से 2 से 3 बार परफॉर्मेंसेस की है। और सर अपार्ट फ्रॉम स्पार्क मैंने कॉलेज के बाहर भी, जैसे कि हम मैरी गए थे, और भी जैसे बहुत सारे क्लब्स होते हैं, उसमें भी डांसिंग और एक्टिंग मैंने परफॉर्म किया। तो प्रिया की तरह तुम्हारे साथ भी हुआ, तुम कॉम्पिटिशन्स में गई और कुछ प्राइजेस वगैरह लेके आई? यस सर, बहुत ज्यादा नहीं, एक्टिंग पे मिला था अभी रिसेंटली, परफॉर्मर ऑफ द डे विनर थी मैं। और सर ऐसे मेरी कॉलेज गई थी, तो वहाँ पे लाइक पोएट्री और डांसिंग थी, बट उस पे वैसा कोई अच्छा पोजीशन नहीं आया मेरा। और सर अभी बहुत सारी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। किस में पार्टिसिपेट कर रही हो?
सर अभी रिसेंटली ना विप्स में ओपन माइक में कर रही हूँ और टेक्निया में डांसिंग और पोएट्री के लिए वापस से जा रही हूँ। तो ये प्राइजेस मिलने पे कितनी खुशी होती है? सर बहुत ज्यादा खुशी होती है और सर उससे ज्यादा खुशी तब होती है जब आप बाहर से जीत के अपने कॉलेज लेके आते हो और जब यहाँ पे दिखाते हो अपने टीचर्स को और सर बहुत अच्छा सा लगता है, मतलब और बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। इनफैक्ट टीचर्स भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। मैं तो सबसे पहले लाके बाला मैम के पास जाती हूँ और मतलब जाती क्या कुछ भी होता है तो मैम को मैं बता देती हूँ कि मैम ऐसा ऐसा है। मुझे तो कोई प्राइज लाके दिखाया नहीं तुमने अभी तक। सर बाला मैम को दिखाया है मैम, फिर सर पता है वो प्राइज लाके फिर बाला मैम को मैंने बोला कि मैम मुझे प्राइज आपसे चाहिए, फिर मैम ने भी मुझे वो प्राइज दिया। तो सर ये सब एक ही प्राइज 2 बार मिल गया तुम्हें? हाँ सर, लेकिन सर उस वाले से ज्यादा मतलब अच्छा ये वाला था जब मैम ने दिया था। तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप हार तो अलग बात है। और सर अभी रिसेंटली मैं फुटबॉल भी खेल के आ रही हूँ, डीयू गई थी तो महाराजा ग्रुसेन में अपना मैच था। फुटबॉल भी खेलती हो? यस सर। वो कब से खेल रही हो? सर फुटबॉल स्कूल डेज में खेलती थी, फिर सर जब कोविड के टाइम पे पूरा गैप हो गया, फिर बहुत टाइम के बाद फिर से अभी खेलना से स्टार्ट की कॉलेज की टीम में। तो तुम अभी जो कॉलेज की फुटबॉल टीम में हो, तो अपनी फुटबॉल टीम के बारे में कुछ बताओ। सर कॉलेज की फुटबॉल टीम तो अभी सर रिसेंटली कुछ टाइम पहले ट्रायल्स हुए थे, फिर सर ट्रायल्स में गर्ल्स की एक बहुत अच्छी सी फुटबॉल टीम अभी फ्रेम हुई है और उसके बाद से हम 2-3 मैचेस अभी तक खेल चुके हैं। लाइक डीयू के साथ हमारा मैच हुआ था और अब सर आगे लाइक वो एक सर एक टाइप का प्रैक्टिस मैच था और बहुत कुछ सीखा हमने दूसरों की टीम से। उसके बाद सर अभी और भी कंटिन्यू कर रहे हैं इस चीज में। तो अभी तुमने 2 चीजें बताई, डांस के बारे में बताया, फुटबॉल के बारे में बताया, और क्या क्या है बताने के लिए? सर सिंगिंग करती थी, लाइक इंडियन वोकल सीखती थी और अभी सर सिंगिंग रुका हुआ है, मतलब सीख नहीं रही हूँ बट गाना गाती हूँ ऐसे। अच्छा, किस तरह के गाने गाती हो? सर पहले मैं इंडियन क्लासिकल गाती थी, जैसे सरगम अंतरा सरगम गाती थी पहले। अब सर रुका हुआ है और बिकॉज सर यहाँ जमशेदपुर से दिल्ली आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है, बट सर फिर भी आई एम एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। जैसे कि मैं अभी ना हम अपने जैसे कि प्रिया दीदी ने अभी बताया ना कि हम गए थे लाइक नुक्कड़ के लिए, तो सर हम मंडी हाउस गए थे, वहां पे ना हमारा नुक्कड़ नाटक था। तो उसके बाद फिर वहां पे एक त्रिवेणी है, कला संगम है वहां पे, तो सर वहां पे जाके मैंने बहुत चीजें एक्सप्लोर की कि वहां पे म्यूजिक कैसी होती है, डांस कैसे होते हैं, ताकि सर आई हैव टू कंटिन्यू ऑल माय हॉबीज ना। तो सर अभी बस देख रही हूँ और अभी यहाँ दिल्ली से लाइक फिर से कंटिन्यू करना है, क्योंकि सर बहुत ज्यादा गैप हो गया जमशेदपुर से यहाँ तक और मेरा बीच का टाइम पूरा स्पॉइल हो चुका है, तो आई हैव टू लाइक मेक अप ऑल दैट। तो आज तुम हमको लोगों को क्या गा के सुनाने वाली हो? सर गाना सर गाना गाओ। अभी तो तुम कह रही हो कि तुम सिंगिंग करती हो। हाँ सर करती हूँ। तो सुनाओ, फिर क्या प्रॉब्लम है? सर इंडियन क्लासिकल करती हूँ तो। ठीक है, इंडियन क्लासिकल सुनो। सर क्लासिकल है, लोग इंटरेस्ट लेंगे? हाँ हाँ, सब मैं इंटरेस्ट लूंगा, कोई ले ना ले मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मुझे इंटरेस्ट आएगा। तो ये बेसिकली एक पेट्रियोटिक सॉन्ग है जिसमें कि सारे सरगम्स हैं जो कि लाइक इंडियन क्लासिकल वोकल को शो करता है। पदसा गरि म गरि सा, पदसा गरि सा, पदसा गरि म गरि सा, पदसा गरि सा, पद स ध सा रे सा रे ग रे ग प धा, द प ध प ग प ध प ग प ध प ग रे सा, सा ग रि म ग प म ध प म ग रे सा, सा रे ग। सर अ शॉर्ट इंट्रो। ठीक है, समझ में आ गया, उतने से पता लग रहा है ना, लेकिन अभी तुम्हें और रियाज करने की जरूरत है। आवाज तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें रियाज अभी चाहिए। सर वो बीच में छूट गई थी ना, लाइक सर मतलब कभी कभी ऐसा होता था ना कि सर सबके साथ ऐसा होता है, बहुत सोशल इशू है कि घर से आपको अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई ना आपको परमिशन नहीं मिलती है, और अगर आपको परमिशन मिलती भी है तो आपको ऐसा होता है कि तुम कर तो रही हो लेकिन तुमको पढ़ाई में भी लाइक बैलेंस करना है।
तो सर ऐसा था, तो मेरे से सिंगिंग छूट गया था बीच में, तो मैं सिंगिंग सीखना ही बंद कर दी थी। तो लेकिन सर डांस में अब तुम खुद ही प्रैक्टिस किया करो, अब तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है ना यहाँ पे, तो आप प्रैक्टिस हाँ किया सर, करो। सर तभी सर प्रैक्टिस करूंगी, और अभी क्लासेस भी ढूंढ रही हूँ कोई हम्म, अच्छा सा मिल जाए तो। सर ऐसे बहुत जगह देखा है, नोएडा में भी डांस की पंडित बिरजू महाराज जी की बहुत अच्छे से है, वहां भी जाने का प्लान है अभी आगे। सो मूविंग ऑन टू प्रिया। प्रिया, तुम कुछ सुनाने वाली थी हमें। यस सर, सर ये वुमेन एम्पावरमेंट पे थोड़ा अलग है, क्योंकि हम जो वुमेन्स है उनको देवियों का नाम देते हैं, तो मेरा थोड़ा सा उससे अलग है ये पोयम। एक नया दिन, एक नया शोर, एक नया दौर, एक नया जोर। एक नया दिन, एक नया शोर, एक नया दौर, एक नया जोर। इतिहास ग्रंथ और शास्त्र का समय समय पर शोर हुआ। लक्ष्मी हूं मैं, दुर्गा हूं, इन नामों का दौर हुआ। आदि आदि नामों के पीछे कैसे जुड़ गए नाम अनंत। नारी नारी ना रही, बस रह गया नामों का प्रचलन। खींचतान और जोर शोर, नारी की तू जटा न छोड़। खींचतान और जोर शोर, नारी की तू जटा न छोड़। नारी है ये क्या कर लेगी, अबला जैसे शब्द का शोर। अबला जैसे शब्द का शोर। बांध केश और कमर को कस ले। बांध केश और कमर को कस ले, कर प्रहार तू चला कटार। बांध केश और कमर को कस ले, कर प्रहार तू चला कटार। मिटा अस्तित्व हैवान का, और स्थापित कर नारी सम्मान। स्थापित कर नारी सम्मान। जो उठ रहे ये हाथों के वार, जो उठ रहे ये हाथों के वार, जो उठ रहे ये अनंत सवार। जो उठ रहे हाथों के वार, जो उठ रहे ये अनंत सवार। जान ले तू शक्ति अपनी, एक प्रहार में कर विनाश, और एक प्रहार में कर विनाश। नामों का ये चलन हटा, नामों का ये चलन हटा, अपनी तू पहचान बना। अंधियारे संसार में अब, अंधियारे संसार में अब, विश्वास की तू लौ जला। चीख चीख के कह दे सबसे, एक नया दिन, एक नया शोर, एक नया दौर, एक नया जोर। थैंक यू सर। ग्रेट। एकदम क्रांतिकारी कविता है वो, बिल्कुल वीर रस का भान हो रहा था। तो तुम्हें क्या लगता है, वीमेन एम्पावरमेंट कैसे हो पाएगा इस देश में? कुछ है तरीका तुम्हारे पास? सर जो अभी इशिका ने गाना, मुझे वो सुन के ही काफी ये होता है कि मुझे गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है, बट मुझे उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर मुझे लगता है कि हर मतलब सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम है ना, उनका हल निकल सकता है प्यार से अगर निकाला जाए तो। अभी इशिका ने कहा कि अलाउ नहीं होता, तो अभी कुछ दिनों पहले ही थिएटर की वर्कशॉप के बाद हम लोग जा रहे थे प्ले देखने के लिए, तो काफी लोगों ने कहा था वहां पे। तो मैंने अपने दोनों फ्रेंड को, जो ये कह रहे थे कि नहीं जाने देंगे पापा, मैंने कहा मुझसे बात करवा दो पहले तो, ठीक है। तो मुझसे बात को मैं देखती हूँ कैसे नहीं जान देते, मैं उनसे बोलती हूँ कि आपको 8 से 8:30 तक आपको बच्चा आपके घर पे मिलेगा, ठीक है। तो फिर इन लोगों ने पहले बात की। तो सर कई बार ये होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि पापा मम्मी इस बार भी नहीं जाने देंगे, इस बार भी नहीं जाने देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। अगर कोशिश करें, बात करें, मनाना एक बहुत ही अच्छी चीज है। वही फिर कम्युनिकेशन एक हो गया, क्योंकि मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी जब सब्जेक्ट लेना था मेरे को, तो कहीं ना कहीं वो जब बात करते ना, तो दोनों ने अपने घर पे बात की और दोनों को अलाउ कर दिया गया, और दोनों 9 बजे घर पहुंचे आराम से। तो सर जहां तक आपने जो कहा, तो मुझे लगता है ये भी बात से ही होगा, और एजुकेशन तो है ही एक चीज जो हम ला सकते हैं। अभी तो तुम बात की बात, अभी तो कटार निकाल रही थी तुम उसमें, कविता में तो। सर तो वो तो एक मतलब वो कहीं वो गलत नहीं है। मैं कटार मतलब वो एक कटार का मतलब ये नहीं कि आपको सच में कटार निकालनी है, ऐसे तो फिर पोएम्स में आप एग्जैजरेट करते ही हो चीजों को। कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग से, अपने भाव में वो चीज लेके आओ कि जहां आप में इतनी शक्ति हो, आपकी आवाज में, आपके थॉट्स में इतनी शक्ति हो कि आप सामने वाले को मना सको। सर अभी एक ना बहुत अच्छी सी फोटो आई थी, अभी हम रामनवमी पे बहुत कुछ देख रहे थे कि क्या हुआ। उसके बाद एक जगह पे मैंने देखा कि एक रैली जा रही थी रामनवमी के दिन, और वहां पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो फूल बरसा रहे थे। सर वो इतनी प्यारी फोटो थी, मतलब अब किसी भी वजह से हुई हो, लेकिन मुझे लगता है मुझे उस टाइम एकदम से स्ट्राइक किया कि अगर इस चीज का हल है तो प्यार ही है। आप प्यार से ही चीजें निपटा सकते हो, बस एक तरीका होना चाहिए, समझिए कि आप कैसे कर सकते हो। और फिर हमारे जो मुझे लगता है फ्रीडम फाइटर्स जितने भी हुए हैं ना, उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके दिए हमें, प्यार से भी काम करना है, जहाँ पे जोर आजमाना है जोर से भी काम करना है। तो मुझे लगता है वो तो काफी अच्छी चीज है। और मुझे समझ नहीं आता लोग इस पे क्यों लड़ते हैं, कि कोई कह रहा था शांति से हो जाएगा, कोई कहता है लड़ाई से हो जाएगा। इसमें लड़ने की तो कोई बात ही नहीं है, हमने दोनों से कर लिया है, तो ये तो सीखने वाली चीज है। तो अभी तुम जो नाटक दिखाने के लिए ले गई थी अपने साथ 2 लोगों को, जिनके पेरेंट्स से बात करके तुमने उन्हें कन्विंस किया, वो तुम्हारे बैच के थे कि तुमसे जूनियर बैच के थे? हाँ सर, एक जूनियर बैच की और एक मेरी क्लास।
तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो कन्विंसिंग पावर है कि लोग तुम्हारी बात मान जाते हैं। हाँ सर, क्योंकि मेन चीज वही है ना कि आप मुझे, अगर आपको काउंटर करना है, आपके पास क्या चीज है काउंटर करने के लिए। अगर अगर मैं गलत हूँ तो मैं उस चीज पे बात ही नहीं करूंगी कि मैं गलत हूँ, तो मैं मान लूंगी। लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये चीज गलत है तो मैं सामने वाले से बात करूंगा, मैं तभी कॉन्फिडेंस आएगा मेरे में। अगर मैं सही हूँ तो, अगर मैं गलत हूँ तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अपने जूनियर बैच का कितना ध्यान रखती हो? इशिका का की कितनी केयर करती हो तुम? सर वो तो इशिका बताएगी, मैं अपनी तारीफ इशिका कर रही बताओ, हूँ। तुम ही बताओ फिर। सर जब भी हम बाहर कहीं जाते हैं ना, तो प्रिया दीदी इज लाइक कि गाइड बन जाती है, टीचर बन जाती है। हर एक जगह पे बोलते रहते हैं, अरे यहाँ पे रुक जाओ, ऐसे रोड क्रॉस करो, यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलना, यहाँ पे ऐसा एक्टिंग करनी है, यहाँ पे लोगों को ऐसा अट्रैक्ट करना है। लाइक सर वो ना एक एक चीज बताते रहती है। चाहे अगर मैं कुछ पोएट्री का, सर मैं भी लिखती हूँ ना पोइम्स, तो अगर मैं कुछ भी लिख रही होती हूँ तो दीदी हमेशा उसको सुधारने में हेल्प करती है। या अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है कि सर ऐसा यहाँ भी होता है कि दीदी लेट हो जाएगी, फिर बीच में अलाउ नहीं करेंगे, पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, तो ये फिर हमें समझाती है कि देखो बच्चे, तुम लाइक अभी इस स्टेज में हो, इस फील्ड में हो, तो तुम्हें तो टाइम लगना ही है, तुम तो रात 10 बजे भी घर पहुंचोगे। तो फिर फर्क सर क्या हुआ? तुम घर पे थी, तुम्हारे पेरेंट्स रेस्ट्रिक्शन लगा देते, यहाँ पे प्रिया ने इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए तुम्हारे ऊपर। सर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो कहीं ना कंसर्न है। कंसर्न और रेस्ट्रिक्शन बात तो वही है, जो बड़ा होता है वो कंसर्न का नाम दे देता है, लेकिन लगाता तो रेस्ट्रिक्शन ही है ना। हाँ सर, इशिका कौन से रिस्ट्रिक्शन की बात कर रही है? आप बोलते तो कि जल्दी पहुंच जाना, अच्छा, ऐसे हाँ। करना। हाँ सर, जब मैंने अगर बोल दिया कि अभी हमारा काम खत्म हो गया है, आपको अब घर जाना है, और आपको पता है कि रात के 9 बजे आपको घर पहुंच जाना चाहिए। मैं खुद लेट हो जाती हूँ, मुझे पता है, मैंने अपने घर वालों को बोल रखा है कि 12 बजे तक मेरे को कॉल मत करना, अगर 12 बजे से लेट हो तो मेरे को कॉल करना। तो अगर इशिका है, मुझे पता है कि अभी उसको नहीं पता इतना, तो मैं ये चाहूंगी अगर यहाँ से हम जा चुके हैं, जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। मजे के लिए सर कोई पेरेंट नहीं जाने देते हैं, और मुझे लगता है काफी हद तक वो सही भी हो गलत भी हो तो बात की बात है, लेकिन हम किसी काम की वजह से आए हैं, तो अगर काम टाइम पर हो चुका है तो हमें टाइम पर घर भी पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना, तो वहीं पे प्रॉब्लम आती है, जो कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ देखा है। जब आप फैमिली को बताते हो कि आप इतने तक काम है आपका और आप इतने बजे आ जाओगे, तो इसका मतलब आप आ जानी चाहिए। अगर आप नहीं आ रहे तो फैमिली को डाउट वहीं पर होता है और प्रॉब्लम्स वहीं पे क्रिएट होती हैं। So moving on again to Lakshya. So Lakshya, now this is your final year, and in a month or so you will be having your exam, and then you will be moving out with a bachelor's degree. Now, with the what memories you will be leaving DME? What memories? I have abundant memories, like sitting in the classroom and like learning many new variety of things from both my classmates and also from my teachers. And some, like once I had a rap battle kind of thing with one of my dearest friend, Aryan RV, and it was like amazing experience. Like I thoroughly enjoyed it. And like speaking of like in this talk we are having a woman empowerment. I wrote a piece back last year, like it is about kind of a poem on women empowerment, but it is on the like lowest section of the society of women. So like people underestimate them, people limit them. So this poem is about like don't underestimate them, don't limit them, like, and don't treat them like they are some useless trash, and like be human to everyone. So can I like kind of recite this poem? Yeah, sure. Yeah. So yeah, I wrote this. It's titled "Old School Muse" actually. So it starts with this: I got out of the store, found an innocent whore, contradicting myself till I got bored. She lighted up her charm, and I found something to adore. The mixing of her moves highlighted the potential in her grooves. She got nothing to prove. Her soulless boots are enough to pull you from your roots. No matter how you improve, you won't beat her till she refuses. She knows the hard truth that each one of us is a broken product of old school muse. So refuse to introduce or be a self-proclaimed absolute or call her prostitute, but you won't be able to execute the perfectionism like her. She flows better than a river. So get a little sweeter or else just forget her. As she is fused with her dance, you never stand a chance. No matter how much acknowledgement you refuse, she is a goddess of the old school muse. So old school muse is like the old typical thinking, like empowering each and every human being to the highest of their potential and not like limiting and underestimating anyone. So it was like based on that.
and I've written like 50 such like poems. Yeah, great. No, no, I mean, this was really, really interesting. And the important thing is that, I mean, everybody gets motivated from each other. Like in this Spark meeting, we were talking about this peer-to-peer learning and all. एक आदमी को दूसरे से प्रेरणा मिलती है, तो इतनी अच्छी कविता प्रिया ने सुनाई, कम से कम तुम्हें मोटिवेशन मिला, तुमने जो पहले तुम कविता शायद नहीं सुनाने जा रहे थे, वो पोएम हम सबको सुनने का मौका मिल गया. So there's a very, I mean, these kind of positive vibes really matter a lot. And in any educational institution, particularly if this kind of positivity is spread, then everybody will be moving in the right direction. We will be doing something good, something worthwhile, which is benefiting everybody. Now, moving on to you, Priya, again. Now, I mean, since you are there now, one more year in DME, whatever you have done is there, which you have already told us. But then, what is your agenda for the next 1 year? सर सबसे मेन काम जो करना है, जो मैंने आपको अभी बहुत लंबी चौड़ी बुक्स की एक वो दी थी, मुझे उसे अभी और भी लंबी है, तो मुझे वो कंप्लीट करना है. और मुझे इसके बाद मास्टर्स करना है, तो मुझे उसकी तैयारी करनी है अभी, जो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, अब करनी है स्टार्ट. तो मास्टर्स करना है इसके बाद. तो अभी मेन काम यही है कि अभी जितना ज़्यादा हो सके नॉलेज लेना है, क्योंकि मेरे पास अभी इतना ही टाइम है कि अभी बैचलर्स के बाद अभी मास्टर्स में जाएंगे, फिर उसके बाद हमें फील्ड में ही उतरना है, फील्ड पे ही काम करना है. तो अभी जितना हो सके मुझे लगता है अभी ही टाइम है जब नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ के मैं ले सकती हूँ, तो मुझे अभी उसी चीज़ पे फोकस करना है और मैं वही कर रही हूँ. Okay, and what will you tell us about your experience till date in terms of your friends and in terms of your teachers? सर टीचर्स की जहाँ तक बात है, तो हर टीचर, मतलब मैं तो ऐसे नाम ले ही नहीं सकती, क्योंकि हर एक टीचर जिनने पढ़ाया और जिनने नहीं भी पढ़ाया, उन्होंने हमेशा किसी ना किसी तरीके से समझाया है. और सबसे मेन चीज़ है कि मेरे को जो मुझे आज तक जो भी उन्होंने बताया, जो भी उन्होंने किया है, और जब मैंने उसको मतलब मैं कर पाई हूँ, जो उन्होंने कहा चीज़ें ठीक करने के लिए मैंने वो की, तो फिर वो फीडबैक भी आता है कि आपने ये ठीक किया, आपने ये गलत किया. तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है कि हर एक टीचर आपको सपोर्ट करता है, आपको बताता है कि आप कहाँ गलत हो, और फिर आप जब सही करते हो तो आपको बताता है कि आप यहाँ पे सही कर रहे थे, आपने इम्प्रूव किया है. तो वहां से लगता है कि हाँ वो चेंज आ रहा है, भले मैं खुद नहीं देख पाती हूँ चीज, बट टीचर्स बता देते हैं कि ये चेंज आया है, तो समझ आ जाता है कि अच्छा मतलब काम हो रहा है. और जहाँ तक कि फ्रेंड्स की बात है, तो फ्रेंड्स भी मतलब काफी अब तो बहुत मतलब सभी एक तरीके से अच्छे से मतलब फ्रेंड ही बन चुके हैं. तुम्हारे फ्रेंड कुछ डरते हैं तुमसे, मुझे लगता है. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं. इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं डरते हैं. मैं जितना भी बोल भी रही हूँ ना उनके सामने, तो उनको बोलने भी नहीं देते ढंग से. अरे ऐसा कौन है जो तुम्हें बोलने नहीं देता? सर हर कोई ऐसा ही है, बट तुम लोगों को अलाउ कैसे करती हो कोई तुम्हें बोलने न दे? नहीं सर, मतलब ऐसा है कि वो काफी कंसर्न है, वो इतने ज्यादा कंसर्न होते हैं कई बार कि मेरे को ही चुप करा देते हैं. तो मतलब ये चीज है थोड़ा सा. अगर मेरी थोड़ी आदत है कि मुझे ज्यादा मतलब मैं एक्सट्रोवर्ट भी नहीं कहूंगी अपने आप को इतना, क्योंकि मेरे को लोगों से मिलना जुलना पसंद है, लेकिन मेरे को अपने बारे में ज्यादा बात करना नहीं पसंद है, जो कि हर वर्कशॉप में कहते हैं आपको खुद को बेचना आना चाहिए, मतलब थोड़ा सा वैसा वर्ड, बट आपको आना चाहिए. तो वो चीज मेरे को ये लोग सिखा रहे हैं अच्छे से कि प्रिया अगर कुछ किया है तो बताना होता है, अगर कुछ किया है तो बताना होता है. तो ऐसे करके अब धीरे धीरे आ रहा है. तो वो तो साथ में वो पीयर टू पीयर लर्निंग वाला ही काम चल रहा है. So Ishika, what will you tell us about your campus life till date? तो सर जैसा कि 12th स्टैंडर्ड हमारा ऐसे ही चला गया ऑनलाइन, तो हमें लगा था कि अब हमारा कॉलेज लाइफ भी कहीं ऑनलाइन ना चला जाए. फिर सर जमशेदपुर से दिल्ली आना, तो मैंने सोचा कि अगर ऑफलाइन लाइक ऑनलाइन अगर हो गया फिर तो मैं फंस जाऊंगी, मतलब कैसे होगा, बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया था. लेकिन नहीं, अभी जब यहाँ आए हैं तो मजा आ रहा है, बहुत चीजें सीखने को मिल रही है, बहुत चीजें पता चल रही है, खुद को एक्सप्लोर कर रही हूँ, चीजें एक्सप्लोर कर रही हूँ. टीचर्स, फैकल्टीज, दोस्त सबसे इंटरेक्शन हो रहा है, और बहुत चीजें कर रहे हैं सर, जो कि शायद नहीं किया था पहले, या शायद सोचा भी नहीं था कि कभी करूंगी. अच्छा, तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं यहाँ पे कॉलेज में? सर बहुत है. बहुत मतलब कि कितने? 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, कितने? सर क्लास में सेक्शन ए में 60%, सेक्शन बी में भी 60%, सेक्शन सी में 20%.
ऐसे मतलब और पूरा टाइम दोस्तों के साथ ही बिता देती हो, पढ़ाई कब करती हो फिर? ऐसे दोस्त के साथ बिताती नहीं ना, जब कभी जा रही होती तो दोस्त मिल गए तो वैसे दोस्त बन जाते हैं सारे, कभी किसी के साथ नहीं रहते सर। Okay, so moving on towards the end of this program, I will give one minute to each one of you. Any final thing that you want to say, starting from Laksh? Yeah, so sir, the final thing I want to say is like enjoy, like to younger student, every younger student out there, like they have to enjoy everything, like enjoy your like positive moments, negative, everything enjoy, because you won't get them like again. And it's like a world of endless possibilities. College is a world of endless possibilities, and you never know like what might surprise you. So keep on exploring and doing your thing. That's all. Yeah, Priya, what will you say? जो लक्ष्य भैया ने भी कहा कि पॉजिटिविटी होनी बहुत जरूरी है सबसे पहले। दूसरी चीज कि हम सबको एक गोल होता है और एक रीजन होता है कि हम काम कोई क्यों करना चाहते हैं, वो रीजन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है हमारे लिए। तो वो रीजन जितनी जल्दी हम ढूंढ ले हमारे लिए उतना अच्छा है। और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और बस वो कोशिश सही दिशा में होनी चाहिए, तो वो सही दिशा तब मिलेगी जब आपको रीजन पता चलेगा। तो आप वो रीजन जल्दी से जान लीजिए और आगे बढ़ते ही जाएंगे। इशिका? थैंक यू सर। स्टार्टिंग है कॉलेज लाइफ की, बहुत चीजें एक्सप्लोर करने को, बहुत सारे सोसाइटीज है अपने कॉलेज में, बहुत चीजें कर सकते हैं। जिनको एक्टिंग में इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, लिखने में इंटरेस्ट है, बोलने में इंटरेस्ट है, बहुत कुछ है करने को और बहुत चीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ दोस्त बना सकते हैं, फैकल्टीज भी अच्छी है, उनसे अपनी सारी बातें, प्रॉब्लम्स, पढ़ाई से लेके सब कुछ शेयर कर सकते हैं। और माय सीक्रेट मंत्रा ऑफ सक्सेस, जान लगा दो या फिर जाने दो। किसी भी चीज को अगर चाहिए तो उसे या तो जान लगा दो पाने के लिए या फिर छोड़ दो, ये बीच बीच का नहीं करना चाहिए। ये तो सबसे बढ़िया मंत्रा दिया तुमने कि जान लगा दो या जाने दो। चलो, तो हम इस नोट के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, उस पॉजिटिविटी के नोट के साथ, क्योंकि हमारे तीनों ही पार्टिसिपेंट आज के इस एपिसोड के सबने ही पॉजिटिविटी की बात की और लक्ष्य ने इस बात को एम्फेसाइज किया एंड प्रिया टॉक्ड अबाउट कि हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस लिए काम कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। और जैसा कि प्रिया ने कहा कि हमें कंटिन्यूअस एफर्ट्स की जरूरत है, कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आपके पास हिम्मत है तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा इशिका ने कहा, तो ये तो मुझे भी एक नया मंत्र मिल गया कि लेकिन हाँ, ये जाने दो वाला कॉन्सेप्ट मेरी डिक्शनरी में नहीं है। वो तो जो करना है वो करना है। वी कैन नॉट लेट एनीथिंग पास. We have to have that kind of determination that if we have something in hand, it has to be accomplished come what may. तो उस स्पिरिट के साथ काम करने की जरूरत है और मैं समझता हूँ कि सभी लोग मिलके इस तरह से काम करेंगे तो वी कैन टेक दिस सोसाइटी, दिस कंट्री फॉरवर्ड. थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम. थैंक यू ऑल.